Which question you are talking about, dear? Sir, which you had said only 90%, 90% get wrong and only 10%. Arey, yes. I remember that question 5600. Yes, sir. Yes. And what was the? सर लेकिन उसे 8 I से mean, मल्टीप्लाई करना है. हाँ, ये वो आ गया था सही आंसर. मैंने थम्स अप भी दिया था ग्रुप पे किसी को. Yes, Yes, sir. sir. ना? अच्छा, एक बार बताओ क्वेश्चन में वो नंबर क्या था? Sorry, एक second देख लीजिए. So 15600 was the original number. 15600 was the original number. And what was he asking? Number of In integral solutions bus. For x, y, z, w is equal to 15600. integral solution of number of integral solutions of x, y, w, z, उल्टा पुल्टा लिखा चलेगा लेकिन equal to what बच्चों? So 15600. What can we write to x, y, z, w equal to 2 raised to power what बच्चों? So 2 raised to 4 4 into 3 raised to 1 into 5 raised to 2 into 5 square. into 13 to the power 1. Okay. Do you remember we have already done one question x, y is equal to 75. I remember Yes, we sir. have done. है ना? Yes, sir. Yes. So guys here let x is equal to 2 raised to power alpha 1, 3 raised to power beta 1, 5 raised to power gamma 1 and 13 raised to power delta 1. Right? Similarly, y is equal to Yes. 2 raised to power alpha 2 blah blah blah. Z equal to 2 raised to power alpha 3 blah blah. And w equal to 2 raised to power alpha 4 blah blah. Let x, y, z are these, z, w are these values which satisfies this. बराबर बच्चों? Yes, sir. Yeah. Now you want to find the value of x, y, z, w which satisfies this. Means exactly what do you want, bachcho? When I multiply this x, y, z, w, what do I get? 2 raised to power alpha 1 plus alpha 2 plus alpha 3 plus alpha 4, 3 raised to power beta 1, 2 beta 4, right? 5 raised to power gamma 1, 2 gamma 4, and बच्चों 13 raised to power delta 1, 2 delta 4. ये आएगा ना? If I multiply these x, y, z. Yes, sir. And Yes, guys, what exactly you want? Alpha 1 plus alpha 2 plus alpha 3 plus alpha 4. ये कितना चाहिए? ये कितना? Or is equal to 4. 4 चाहिए. बीटा 1 का समेशन कितना चाहिए बच्चों? 3. Sir, 1. one. Come on. No, sorry, 1. गामा 1 का समेशन कितना चाहिए बच्चों? 2, 2. 2. And delta 1 का समेशन कितना चाहिए? 1. 1. 1. Okay. अच्छा एक बात बताओ, इसमें अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 तीनों 0 आ जाए और अल्फा 4 का वैल्यू 4 आ जाए तो अपने लिए सक्सेस है कि नहीं है वो? है sir. Yes, sir. Yes, sir. Isn't it implying that we want non-negative integral solution Yes, sir. of these equations? बोलो बच्चों, सही है कि नहीं है? Yes, sir. Yes, Correct. है. Yes, sir. फॉन्ट साइज का कोई 5006. प्रॉब्लम है क्या? थोड़ा बड़ा होना चाहिए क्या? नहीं सर, नॉर्मली है, इसमें कोई दिक्कत नहीं. ठीक है. अच्छा बताओ, ये तो आंसर आ गया ना बच्चों? पहले वाले का आंसर बोलो क्या आ गया? 5600. तो 5600. 5000. अब पहले वाले का फिर पहले इसका अच्छा. Sir, 4 plus 4 minus 1. 4 ही आता है शायद से. sir, 7C3. 7C3 C3. multiplied by बच्चों 1 plus 4 minus 1. 4C. 1 Sir, plus 4 minus 1 4C3. 4C3 into Sir, into 5C3. 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 into 4C3. 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 बच्चों ये x y z साइमल्टेनियस आएंगे ना? तो ये मल्टीप्लाई हो Yes, जाएंगे sir. ना? And What do you say?
मल्टीपल, मानते हो नहीं मानते हो? यस सर, Yes, sir. अच्छा ये सॉल्यूशन आ गया, इसका आंसर जो आ रहा है ना वो आ रहा है 5600. 5600. Yes, I sir. was so happy when I saw this answer. Though, see, बच्चों, it happens that you are texting at 4 o'clock and I look at the message at 7 o'clock. But I see the message. मतलब during the day I see the message for sure. Okay. When I saw this message, I was so happy that there is someone who could collect the memories of xy is equal to 75. क्योंकि वहां से क्वेश्चन यहाँ तक तो पहुंचता है. अब आप बताओ कि फर्स्ट टाइम में 90% का गलत होना, वो तो यही बताता ना कि एग्जाम में 90% को गलत हुआ है. अरे सेकंड टाइम में करेक्ट होना तो बाहर आके करेक्ट हुआ ना बच्चों, Yes. बराबर ना? यस तो सर, इसका जो ट्रैप था वो उसको पकड़ में आया और मुझे बहुत अच्छा लगा. आई वॉज वेरी हैप्पी. आई सेड यार है कोई बच्चा जो समझता है इस चीज को कि इसमें ट्रैप क्या था क्वेश्चन में. पता है बच्चों, उसने रीजन भी लिख दिया है. मुझे लगता है पूरी क्लास को एक चक्कर समझ में आ चुका है. बच्चों एक बात बताओ, ये जो एक्स वाई जेड के आंसर्स आएंगे 2 की पावर में, जो आंसर आएंगे ये सारे के सारे एक्स वाई जेड पॉजिटिव नहीं है क्या? हियर एक्स वाई जेड डब्ल्यू ऑल आर पॉजिटिव. Yes, sir. बोलो सही है कि गलत है? ये है ना. और क्या मांग रहा है वो? इंटीग्रल सॉल्यूशंस मांग रहा है. बच्चों इंटीग्रल सॉल्यूशंस जो होंगे, इंटीग्रल सॉल्यूशंस जो होंगे उसको हम क्या लिख सकते हैं? पहला एक्स वाई जेड डब्ल्यू ऑल पॉजिटिव. ऑल पॉजिटिव, यस सर. दूसरा बच्चों एक्स वाई जेड डब्ल्यू ऑल नेगेटिव. सही है सर? नो? Yes, sir. यस सर, Yes. Yes, sir. तीसरा बच्चों 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव. कोई भी 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव. बोलो बच्चों और कोई ऑप्शन बचा है क्या? Nice, sir. Okay. नहीं सर, No, sir. अच्छा बच्चों चारों पॉजिटिव और चारों नेगेटिव, ये वाला तो आंसर डबल हो जाएगा. सही है सर? नो? Yes, sir. Yes, sir. 5600 5600 प्लस 5600, एक तो ये आ गया प्लस. अब बच्चों 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव, ऐसा सोचो एक्स वाई जेड डब्ल्यू, इसमें 2 पॉजिटिव, ये दोनों पॉजिटिव और ये दोनों नेगेटिव, बराबर ना? Yes, sir. Yes, sir. ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव. ये मैं कर क्या रहा हूं बच्चों? ऐसा नहीं कर रहा 4 में से 2 जगह पॉजिटिव के लिए ढूंढ रहा हूँ, Yes. या फिर 4 में से 2 को- जगह नेगेटिव के लिए ढूंढ रहा हूँ. सही है सर? नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, और sir. बच्चों उसके उसके तरीके कितने हैं? Positive. Sir, 4C2 वेज है ना? 4C2. 4C2 वेज से जितना पॉजिटिव 2 जगह मिलेगा उतना ही पॉजिटिव नेगेटिव बाकी बची हुई जगह पर लोग अरेंज कर देंगे. अरे वो 10 में से 4 बच्चे लेने हैं, तो 10 में से 4 बच्चे जैसे लोगे 6 बच्चे अपने आप ही सिलेक्ट हो जाएंगे ना. इट्स समथिंग लाइक दैट. तो बच्चों ये 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव कितने सॉल्यूशंस आएंगे पता है ना तुम लोग को? 4C2 सॉल्यूशंस आएंगे ना. 4C2 Yes, कितना होता है? 6 होता है. 6 Sir, सर, 6 होता 4C2 है. 6. 4C2 is equal to 6. 6 pills. सोचो ये 5600 जो सॉल्यूशंस आएंगे ये 4C2 टाइम्स रिपीट होंगे कि नहीं होंगे? से यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा आंसर आ गया 8 into 5600. Yes, sir. That's it. It wasn't that difficult question, but there was a trap actually. One should understand that trap. Guys, is it clear? यस सर. सर Yes, गोपाल Yes, sir. सर, मुझे एक स्लाइड डाउट था सर. ये लास्ट 4C2 के बजाय सर मैंने मतलब ऐसे मैन्युअली सारे कॉम्बिनेशंस निकाले थे अरे ठीक है तो सर, क्योंकि वो क्लिक नहीं हुआ था सर. लाइक बिकॉज 2 की बस 2 मतलब 2 नंबर पे इवन पावर था और बस 5 नंबर पे इवन पावर था, तो फिर उस बेसिस पे किया मैंने. और क्योंकि 3 और 13 पे ऑड है तो XYZ फिर तो सुन XYZ तो पॉजिटिव ही है ना. लेकिन Yes, तुझे sir. अगर नंबर ढूंढने हो तो x और y दोनों को नेगेटिव बना ले इंटीजर सेट से. यस और x और y को अल्फा 1 अल्फा 2 मत देख, x और y को पॉजिटिव बना ले और ZW को नेगेटिव बना ले. ऐसा कितनी तरह से कर सकता है, उतनी बार 5600 सॉल्यूशंस आएंगे ना. यस सर, यस सर. मेरे को वो चमका नहीं था तभी. बच्चों ये समझ में आ गया क्या? Yes, sir. अच्छा, यस एक बात में मुझे एक चीज फॉर योर बैच, हाँ मुझे एक बात कंक्लूड करनी थी. परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन इट्स नॉट अ चैप्टर टू कंप्लीट इन से सम स्पेसिफिक टाइम. इतने दिन में कंप्लीट कर दो. सारे साल परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ाओ,
अभी ज्योमेट्री वाले क्वेश्चंस आएंगे तो 1000 क्वेश्चन बना सकते हैं, राइट? जैसे लूंगा अभी 2-3 मिनट बाद लूंगा, राइट? फिर सर्कुलर परमुटेशन है, उस पर तुम उठा के 4-5 लेक्चर पढ़ाओ। तो इस तरह से परमुटेशन करने से जो है ना प्रोबेबिलिटी में अपने को थोड़ा प्रॉब्लम फंस सकता है। बेस्ट वे कि प्रोबेबिलिटी का जो कंटेंट है, कंटेंट एग्जांपल एक एक दो एग्जांपल्स के साथ पूरा करो, राइट? और फिर उसकी प्रैक्टिस करो। अभी एक बात बताओ, तुम लोग सीपीएस सॉल्व करते हो तो तुमने तो बहुत डिटेल में बुकलेट मॉड्यूल वगैरह सब सॉल्व किया है ना बच्चों? हाँ सर। Yes, sir. लेकिन तकलीफ में तो रहते ही हो ना? हाँ सर। Yes, sir. Yes. ऐसा तो नहीं होता कि सीपीएस देखा और फटाक से सॉल्व हो गया क्वेश्चन, कुछ हो जाते हैं, ज्यादातर तो थोड़ी तकलीफ देते ही है ना यस बच्चों? सर। Yes, sir. तो पता है टीचिंग टेक्निक्स में एक ये चीज हम सब लोगों को सिखाते भी हैं, जो फ्रेशर्स टीचर्स आते हैं उनको हम लोग ये चीज सिखाते भी है। टीचिंग टेक्निक्स में स्टूडेंट को डेवलप करना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट बच्चों। स्टूडेंट्स को डेवलप करना, खुद तो टीचर तो खुद तो डेवलप होता ही है, राइट? और वो तरीका क्या है, ये बच्चों ये एग्जांपल जो मैंने करा दिया ना, अब इस पे रिलेटेड एग्जांपल घुमा फिरा के कैसे कैसे पूछेगा, तो मैं इस एग्जांपल को याद दिला दूंगा ना, बराबर ना? तुम लोग को बोलूंगा बताओ वो सॉल्व किया था, कैसे हुआ था। अब बच्चों जैसे एक घुमा के एग्जांपल मैं तुम लोग को इसके जस्ट बाद देने वाला हूँ, राइट? और तुम्हें पहचान करनी है कि सारी ये क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं ये पिछले वाले क्वेश्चन से, आज की थ्योरी, आज तो खैर एक क्वेश्चन सॉल्व किया है, पिछले बार वाली थ्योरी से कैसे अटैच हो रहा है। बच्चों 2 क्वेश्चन करेंगे, एक मैं देके सॉल्व करवाऊंगा, दूसरा तुमसे सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है? सो लेट्स सी, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो या कॉपी कर लो बच्चों, मुझे भी थोड़ा एक बार देखने दो, क्वेश्चन ढूंढना है मुझे। अच्छा ये थोड़ा ओलंपियाड का थियरी है बट अच्छा बच्चों तुम एग्री या डिसएग्री कर सकते हो इस पॉइंट पे। ये जो कुछ थ्योरी पार्ट है ना बच्चों, जैसे मैं एक चीज बताऊं तुम लोग को, ये तुम कॉपी कर रहे हो ना, इसको मैं इरेज कर दूंगा। बच्चों रिलेटिवली प्राइम क्या होते हैं, को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? दोनों So को when no fact except the like the two numbers themselves. कंसेक्यूटिव प्राइम मतलब 13 15 7 अरे देखो, 13 कोप्राइम 15 मतलब 11 उनके बीच में बस 1 कॉमन फैक्टर है और कोई कॉमन फैक्टर। यस, गोपाल Yes. का आंसर एकदम करेक्ट है। को प्राइम नंबर्स मींस वी आर टॉकिंग अबाउट द नंबर्स whose GCD or highest common factor is 1, HCF is 1, not LCM बच्चों, HCF is 1, right? बच्चों 10 और 9 भी को प्राइम है, इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, राइट? 25 और 4 भी को प्राइम है। को प्राइम मींस जिनका, अब यही चक्कर है। तो बच्चों एक वो बताओ, इसको पढ़ाना थोड़ी, ये तो डेफिनेशंस है ना, तो ये मैं तुम लोग को जो पूरी पीडीएफ भेजूंगा, अब तक मैं हाफ पीडीएफ थोड़ी 5 पेज 6 पेज 7 पेज ऐसे भेजता रहा हूँ ना, अगर मैं पूरी पीडीएफ जो जितना हम लोगों ने पढ़ा है बच्चों, उसके एग्जांपल थोड़े डिफरेंट है, हाँ? जो बोर्ड में कराए उसके डिफरेंट एग्जांपल्स है थोड़े थोड़े, ओके? अगर बच्चों वो सारी पीडीएफ भेजूं उसमें डेफिनेशन लिखी मिल जाए तो चलेगा कि नहीं चलेगा, या हाईलाइट ही Yes, करना है? को प्राइम का ये सारी डेफिनेशन उधर मिल जाएंगी, ओके? अच्छा रिलेटिवली प्राइम और को प्राइम सेम होता है, पता है ना तुम लोगों को? ये लिखा हुआ है, ये भी लिखा हुआ उधर, मतलब आई हैव नॉट लेफ्ट एनी सिंगल पार्ट which is not there in the syllabus wise। सिलेबस से बाहर की चीजें तो और इधर उधर लिखे मिल जाएंगी, लेकिन बच्चों को सब मिल जाएगा तुम लोग को, पहली बात। दूसरी बात बच्चों, ट्विन प्राइम क्या होता है? गोपाल ट्विन प्राइम क्या होता है? ट्विन प्राइम और ये नहीं पता। देखो बच्चों, को प्राइम स्क्रीनशॉट लिया था क्या इसका? पोस्ट Yes, कौन sir. है? हाँ सर ले उसको ही लिया ले है, लेना। भेज दिया उसने ग्रुप में। अच्छा अच्छा ठीक है, फिर तू ही लेना यार, है ना? तो हर बार मैं जब बोलूंगा ना स्क्रीनशॉट लो, तब लेके भेज देना, और फिर नया लेना पड़े तो पुराना वाला डिलीट कर देना, ये मत लेना। लेकिन ये को प्राइम लिखा हुआ उधर, को प्राइम ए कॉमा बी, इनका जीसीडी 1 होना चाहिए बच्चों। जीसीडी तो समझते हो ना? yes, sir. Yes, sir. 1 होना चाहिए, राइट? और नंबर 2 ट्विन प्राइम। बच्चों ट्विन प्राइम पता है क्या होता है? ट्विन प्राइम में क्या होता है, दो नंबर्स जो, दो प्राइम्स जो होते हैं ना, उनका डिफरेंस 1, जैसे 3 and 5। डिफरेंस 2 प्राइम्स के बीच का डिफरेंस 2, डिफरेंस 2, 2 प्राइम्स के बीच का डिफरेंस 2, आई रिपीट 2 प्राइम्स के बीच का डिफरेंस 2 आर ट्विन प्राइम। 3,5
चलो कोई एक और बताओ। 17,19. 17,19, 11,13, पता है ना बच्चों, ये ट्विन प्राइम हो गया बच्चों। इस पर 29 डिपेंडेंट, हाँ बहुत सारे हो जाएंगे। सर जो ठीक है, 6 हाँ बोल ना। मोस्ट ऑफ them will be twin prime right, क्योंकि वो आपने 6 and plus minus 1 बोला था। अरे यार 6 एंड प्लस माइनस 1 में 2 का डिफरेंस होता है, कैसा इंसान है तू यार। सर क्यों नहीं होगा, दो कौन जो तो कॉन्सेप्ट नहीं होगा। अच्छा 6 एंड तो कैंसिल हो जाएगा ना, हाँ उनका डिफरेंस तो वही प्लस आएगा। माइनस 1 के बीच में हो जाएगा। लेकिन इसका वाइस वर्सा ठीक नहीं था, पता है ना तुझे। हाँ सर, हाँ वाइस सर, वर्सा पता है। ठीक नहीं है, वो मुझे पता है। हाँ सॉरी यू आर राइट एक्चुअली, सॉरी आई डिडंट केयर ऑफ दैट 6 एंड एक्चुअली 6 एंड कैंसिल हो जाएगा, डिफरेंस तो 2 ही आएगा। यू आर राइट। ऑल द नंबर्स ऑफ द फॉर्म 6 एंड प्लस माइनस 1 प्राइम वाले, क्योंकि उसके अलावा भी प्राइम्स होते हैं ना। नहीं, उसके अलावा तो प्राइम्स होते ही नहीं है, राइट। सर 2 सारे and प्राइम 3 को नंबर्स छोड़ को, दो। वेट बच्चों, सारे प्राइम नंबर्स को 6 एंड प्लस माइनस 1 फॉर्म में लिख सकते हैं, राइट। लेकिन वाइस वर्सा क्या था उसका, अगर कोई नंबर प्राइम है तो 6 एंड प्लस माइनस 1 फॉर्म में लिख सकते हैं, बट ऑल नंबर्स लेकिन all numbers 6 6 एंड and प्लस minus माइनस 1 में आने वाले सारे नंबर्स प्राइम नहीं होंगे। यस सर यही था। दैट इज व्हाट। ओके सो बच्चों, ये ट्विन प्राइम का डेफिनेशन समझ में आया। अब ये डेफिनेशन Yes, तो sir. लिखा हुआ रहेगा तो यार ठीक है ना, पूरी दुनिया की बुक्स में एक ही चीज लिखी हुई है, उसको मैंने तुम लोग को प्रिंटेड नोट्स में देना है, दैट्स इट। ठीक है, तो बच्चों कंटेंट 1 से लेके कंटेंट लास्ट कंटेंट सर्कुलर परम्यूटेशन रहेगा, और ज्योमेट्री वाले कुछ क्वेश्चन रहेंगे बच्चों, वो करते रहेंगे। बुकलेट में बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, अच्छे क्वेश्चन आएंगे ज्योमेट्री वाले, वो हम लोग कर लेंगे, दैट इज नॉट द बिग इशू, राइट। सो एक क्वेश्चन पुराना उससे रिलेटेड जो है ना, वो मैं ढूंढ रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट, जस्ट गिव मी 1 मिनट। Sir, बेटा 1 मिनट। हाँ I've got my question। हाँ बोलो, कोई कुछ कह रहा था, मैंने उधर देखा नहीं इसलिए नाम देख नहीं पाया। हाँ स्वरा बोलना। sir ये इंटीग्रल सॉल्यूशंस वाले क्वेश्चन में हाँ सर हाँ। ऐसा नहीं हो सकता कि एक वेरिएबल पॉजिटिव है और बाकी तीनों नेगेटिव है, फिर उसका आंसर आ रहा है। बेटा उसको तो मल्टीप्लाई करेगी तो क्या आंसर आएगा बता। मान ले x नेगेटिव है, x का वैल्यू यहाँ से नेगेटिव आया है ना,
हाँ, वाई जेड डब्ल्यू पॉजिटिव है, तो बता तीनों को मल्टीप्लाई करेगी तो आंसर राइट साइड में कितना आएगा? 15600 नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा? सर करेक्ट नेगेटिव आ जाएगा ना। हाँ नेगेटिव आ जाएगा ना। ठीक है, हाँ, समझ में सर। आया? हाँ सर। Alright. बच्चों, the question I was looking for, just look at the question and try to solve it. अपन लोग मिलके ही solve करेंगे। क्वेश्चन है, find the least natural numbers which has number of divisors 12. Find least natural number which has 12 divisors. अच्छा, तुम्हें तो पता ही है 12 डिवाइजर्स वाले तो इनफाइनाइट नंबर्स हो सकते हैं। नहीं, इनफाइनाइट तो नहीं हो सकते, लीस्ट नेचुरल नंबर चाहिए ना, इसलिए फाइनाइट हो जाएगी, है ना। फाइनाइट क्या हो जाएंगे? 12 डिवाइजर्स वाले सारे नंबर्स निकालने पड़ेंगे। बच्चों एक चीज बताओ, 12 रेज़ टू पावर नो नॉट 12 रेज़ टू पावर, 12 रेज़ टू पावर थोड़ी चाहिए, 2 रेज़ टू पावर 11 बच्चों, 2 रेज़ टू पावर 11 बच्चों, इसके नंबर ऑफ डिवाइजर्स क्या होंगे बताओ? सर 12। अरे बाबा, किसी भी नंबर के नंबर ऑफ डिवाइजर्स क्या होते हैं? a+1 इंटू b+1 इंटू c+1 इंटू अप टू so on इज इक्वल टू 12। यही चाहिए ना बच्चों? Yes, Yes, sir. ये a b c d कहाँ है बच्चों? ये पावर में है ना? से यस और नो बच्चों? Yes. yes, sir. अब मुझे बताओ 2 रेज़ टू पावर 11 जो नंबर आ रहा है बच्चों, उसके कितने डिवाइजर्स हैं? So 2 raised to 12. 12. 2 रेज़ टू पावर 11 के डिवाइजर्स, कम ऑन, 2 रेज़ टू पावर 11 के डिवाइजर्स 12 भी होंगे ना? Yes, sir. एक 1 भी, एक 2 रेज़ टू पावर 0 भी होगा ना बच्चों? क्या कर रहे हो, हाँ सर, sorry. Yes, है ना? 2 रेज़ टू पावर 11 के डिवाइजर्स कितने हो गए बच्चों? 12 हो गए ना? 12. Yes. 2 रेज़ टू पावर 11 का आंसर तो बहुत बड़ा आंसर आएगा, खतरनाक वाला बड़ा आंसर आएगा बच्चों। से यस और नो? Yes, sir. बराबर। अब बच्चों बताओ नेक्स्ट, दूसरा नंबर ढूंढना पड़ेगा जिसके डिवाइजर्स, यानी पावर्स का टोटल क्या होना चाहिए बच्चों? पावर्स का टोटल नहीं, पावर्स का टोटल और मल्टीप्लिकेशन ये दोनों सेम आने चाहिए। तो बच्चों एक चीज बताओ, 2 के ऊपर पावर चेंज करनी है मुझे, 2 के ऊपर पावर चेंज करनी है, और एक 3 के ऊपर पावर, तो 3 के ऊपर सिर्फ 1 पावर रखो बच्चों। तो 2 के ऊपर कितनी पावर रखने से 12 बन जाएगा? 3 के ऊपर पावर 1 रखोगे बच्चों, यार रफ में लेते हैं, 3 के ऊपर पावर 1 रखोगे तो 1 + 1 2 हो जाएगा बच्चों। ये बताओ सही है सब लोग? yes, sir. Yes. अब बच्चों यहाँ पे +1 रखने के बाद कितना रखूंगी ये 5. टोटल 12 हो जाए? 5. 5. 5। एक ये नंबर भी हो गया ना बच्चों, इसके डिवाइजर्स भी कितने होंगे? 12 होंगे. 12 भी होंगे ना बच्चों। इसका आंसर कितना आ रहा है? इसका आंसर कितना आ रहा है? 2 रेज़ टू पावर 5 कितना होता है? 32 into 3 कितना होगा? 32 into 3 कितना होगा बच्चों? 96। ये 96 से बड़ा है बच्चों, ये 96 से बड़ा है, यू कैन अंडरस्टैंड दैट, राइट। अब बच्चों 3 पे अगर मैं पावर बढ़ाऊंगा तो बताओ वो तो 9 हो जाएगा। 3 पे नहीं, 9 क्या हो जाएगा? पावर तो बढ़ा के देखना ही पड़ेगा ना। तो बच्चों 3 पे पावर मैंने 2 किया, अब बताओ 3 पे पावर 2 किया तो 2 पे पावर कितना होएगा बच्चों? 3 3 पे होगा. पावर 2 किया तो 2 + 1 आ गया ना बच्चों, ये 3. Yes, sir. Three हो है जाएगा. ना। तो ये Yes, कितना sir. होना चाहिए? +1 में ये कितना होना चाहिए बच्चों पावर? 3. इसके डिवाइजर्स भी 12 आएंगे। और बच्चों इस नेचुरल नंबर का आंसर क्या है बता सकते हो? 72. 72. देखो बच्चों, ये रिजेक्ट हो गया, ये रिजेक्ट हो गया, अभी ये सेलेक्ट हो रहा है, लेकिन ये सेलेक्ट होएगा कि नहीं होएगा ये वेरीफाई करना पड़ेगा। से यस और नो बच्चों? Yes. Yes, sir. Yes, sir. बराबर है। अब मुझे एक चीज बताओ बच्चों,
2 रेस टू पावर 3 तो रखते हैं, 3 रेस टू पावर 2 को 3 रेस टू पावर 1 करते हैं और 5 रेस टू पावर 1 करते हैं, राइट बच्चों। 4 इंटू कितना 2 इंटू 2, ये तो गड़बड़ हो गया, 2 रेस टू पावर 2 ही करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 3 into 2. 3 4 12 से यस और नो बच्चों। Yes. Yes, sir. Yes, sir. बच्चों ये आंसर कितना आ गया बता सकते हो 60. 60. 60। अब बच्चों एक चीज बताओ, इस नंबर के बाद जो भी नंबर बनेगा उसके डिवाइजर 60 से कम नहीं आ सकते, बताओ क्यों। अरे बाबा ये नंबर क्या बन रहा है 14 इंटू 3 इंटू 5, यही तो बन रहा है, सॉरी 4 इंटू 3 इंटू 5, यही तो बन रहा है बच्चों। Yes, sir. 3 4 5 का मल्टीप्लीकेशन, इससे छोटा मल्टीप्लीकेशन तुम ऊपर देख चुके हो बच्चों, इससे छोटा मल्टीप्लीकेशन तुम ऊपर देख चुके हो जितना भी है, राइट। अब आगे वाला जो मल्टीप्लीकेशन आएगा तुम 3 रेस टू पावर 1 हटा दो मान लो और 5 रेस टू पावर 2 कर दो, तो बच्चों ये तो बड़ा हो गया ना नंबर, Yes, sir. Yes, Yes, sir. Yes, sir. समझ रहे हो ना। Yes, sir. ये कितना बन रहा है बच्चों, ये 60 बन रहा है, नेचुरल नंबर 60। कोई मुझे कोई ऑथेंटिक वे बता सकता है इसका कि सर यहाँ जाके रुक जाना है, हर बार में ये सोचना है। बच्चों ढूंढने की कोशिश करना, देखो मैंने वही बताया ना टीचिंग टेक्निक्स, एक होता है खुश करने के लिए बच्चों, अरे यार क्या समझा दिया मजा ही आ गया, एक होता है बच्चों को फंसा देना, जैसे 5600 में फंसाया, कितना अच्छा लगा ग्रुप में मुझे एक बच्चे का आंसर पढ़ के, राइट। और मुझे लगता है कि कुछ 50% बच्चे तो ऐसे होंगे जिनको 5600 तो गारंटीड क्लिक किया होगा उसका आंसर देने के बाद, राइट। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो स्ट्रगल मार रहे होंगे, लेकिन लर्निंग वही है, यहाँ से सीखना शुरू करोगे ना तो 3-4 महीने में आदत पड़ जाएगी इन चीजों की कि हम लोग को ज्यादा एफर्ट डालने पड़ेंगे तो ये आईआईटी जाएंगे। बच्चों पूरी कंट्री में जो टॉप रैंकर्स होते हैं ना, टॉप 100 में, उनके एफर्ट्स बहुत शानदार होते हैं और वो बच्चे खुद दे रहे होते हैं। एक क्वेश्चन मैं दे दूं तुम लोग को इसके पैरेलल, तो तुम नेक्स्ट टाइम में करके मेरे को बता दोगे, क्या बोलते हो? Yes, sir. अच्छा क्वेश्चन है, इससे बेटर क्वेश्चन है और उसका आंसर भी लिख देता हूं। नहीं हाँ आंसर लिखने में क्या दिक्कत है, फिर आंसर लिख दिया तो सब लोग तुम उसी नंबर का फैक्टर बना दोगे। बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड लीस्ट नेचुरल नंबर having 30 divisors। 30 divisors। बच्चों इसका आंसर लिख दूंगा तो पता है ना तुम लोग क्या कर दोगे। अगर इसका आंसर 60 पता होता तो तुम लोग क्या करते थे पता है ना, 2 3 5 की पावर्स को एडजस्ट कर लेते थे ना, से यस और नो। Yes, sir. Yes, Yes. sir. तो इसका आंसर लिखेंगे ग्रुप पे, या कर ले अभी, क्या बोलते हो? Sir, अभी कर लेते हैं. अभी कर लेते हैं। कर लो, टाइम नहीं है एक्चुअली इसलिए बोल रहा हाँ, हूँ, सर। ठीक है कर लो, ट्राई करो, देखो और आंसर आ होमवर्क के जाएगा। लिए कर सकते हैं क्या, क्योंकि फिर अच्छे से सोच पाएंगे इसके बारे में। उन्हें 2 मिनट 3 मिनट किसी का आ जाए आंसर हो सकता है ना, तो 2 मिनट का टाइम ले लेते हैं, ज्यादा टाइम नहीं देते हैं, 2 मिनट कोई सोच लेंगे, बाकी सब फिर घर पे सोच लेना, मैं आंसर नहीं बताऊंगा, ट्राई कर लो, अगर किसी का आंसर आएगा तो फिर वेरीफाई कर देंगे उसको। अच्छा घर के लिए तो आरई का इतना शानदार क्वेश्चन मेरे पास में है, दैट क्वेश्चन बिलोंग्स टू रुड़की एंट्रेंस एग्जाम एंड दैट क्वेश्चन बिलोंग्स टू समथिंग लाइक यू नो बच्चों, थोड़ा टॉर्चर करने वाला क्वेश्चन है, दिखने में इजी लगेगा, टॉर्चर करेगा, ओके और जिस बच्चों को क्लिक करेगा ना मजा आ जाएगा, इट्स समथिंग लाइक दैट, लेट्स सी, देखते हैं एक बार। इस ट्रेंड का, ये ट्रेंड का लास्ट क्वेश्चन वही है बच्चों।
देखो ये सिद्धार्थ जो ना खतरनाक कर रहा है, सिद्धार्थ, गोपाल, दिव्यांश एकदम मस्त लोग हैं, मतलब ये क्लास तो मस्त ही है एकदम। देखो और आगे आंसर आते चले जा रहे हैं। आंसर अनाउंस नहीं कर रहा क्योंकि बाकी बच्चे फिर बायस हो जाएंगे ना। जिन लोग को आंसर आ रहा है, ये एक आंसर आदित्य तेरा रॉन्ग है बेटा। आदित्य अकेला आदित्य का आंसर बाय मिस्टेक रॉन्ग है। हुसैन तेरा भी करेक्ट है, कार्तिक का भी करेक्ट है। ये जिन बच्चों ने कर दिया है ना बताया, वो बच्चों को एक आइडिया आ गया है, जिसके बारे में मैं हिडन बात कर रहा था ना बच्चों, कि ये स्प्लिटेशन, ये जो स्प्लिट होगा, ये स्प्लिट कैसे होगा। बच्चों पता है 10 सेकंड का काम है। मैं तुम्हें नेक्स्ट लेक्चर में अगर सिखाऊंगा ना तो 10 सेकंड में सिखा दूंगा कि इन पावर को, ये इसका भी आ गया, महिक का भी आ गया, वैदिक का भी आ गया, नहीं क्या है, VAN, हाउ डू यू प्रोनाउंस योर नेम, कैरव का भी आ गया। अरे यार वो जल्दबाजी में मैसेज निकल जाता है ना। तो जो आंसर अनाउंस कर दूंगा, सबका तो आ ही रहा है एक्चुअली। 2 मिनट। हुसैन, कार्तिक, निशित, महिका चौधरी, हाँ आई वाज मिसिंग दिस। सबका ही आ रहा है। फिर जेनिथ वन R से स्टार्ट हो रहा है, बड़ा करना पड़ेगा। रोहन का भी आ गया है, रोहन, कैरव, गौरी, सम्यक, रूपविता, सॉरी निशित, रूपविता, श्रीनिधि, which branch are you in? अंधेरी। ऑलराइट, अच्छा कर रहे हो यार तुम, तुम्हारा आंसर मैं देता हूँ। वैदिका को आई वाज मिसिंग एक्चुअली। भावेश इज डन इट। करिए बैच का तो कोई कमाल ही है, मतलब बच्चों मार्क्स पे लेके आओ। हाँ तो मतलब जो तुम्हारा मेजर टेस्ट कब है? 30th 30 जनवरी में। हाँ सर। वही लास्ट वीक में। हाँ सर। सर पहले तब तक 8 को होने वाला था, फिर KVP गोपाल का में रोग है, अरे गोपाल का रोग है। ये बच्चा मस्त निकल गया। गोपाल, सिर्फ मैंने गोपाल भेजा। का और एक बच्चे का और रोग है। मैं नाम लिया था, मैं भूल गया। गोपाल का और एक बच्चे का और रोग है, 2 ही बच्चों का रोग है। बच्चों आंसर अब रिवील कर दूं क्या? बोलो क्या बोलते हो? हाँ कर दो सर। हाँ सर। सर कर दो। Yes, sir. 720 मैक्सिमम लोगों का करेक्ट है हाँ सर actually। हाँ सर 720 सर। 720 आया है। कितने बच्चों को 720 आ गया? क्योंकि बहुत लोगों को आया है ना। कितने हाँ बच्चों को सर। 720 आंसर आ गया है? 23, 24। हाथ ऊपर करने में ऐसे ही एकदम बढ़ जाना चाहिए स्कोर। हाथ ऊपर करने में टाइम थोड़ी लगता है। आंसर इज 720। 720। अच्छा ट्राई कर लेना, अभी ट्राई कर लोगे कि बताऊं? ट्राई कर लोगे ना? कर लिया। हाँ सर करेंगे। अरे बाबा जिनका नहीं हुआ, कर लिया, 31 easy। लोगों का हो गया है, तो जिनको नहीं हुआ ना वो ट्राई कर लेना एक बार। ओके, आई लोअर द हैंड्स। बच्चों ध्यान से सुनो। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीक्वेंस, जहां पे हम नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस निकालना शुरू किया था। बच्चों पता है नॉन नेगेटिव इंटीग्रल वाले क्वेश्चंस कौन से थे? जहां पे बॉल्स आइडेंटिकल एंड बॉक्सेस डिफरेंट, यही थे ना? Yes, sir. यस सर। और बच्चों बॉल्स भी आइडेंटिकल और बॉक्सेस भी आइडेंटिकल, तो वो तो क्वेश्चन ही नहीं बचा ना बच्चों। तो नंबर ऑफ केसेस ही गिनने होते हैं ना बस। यस सर। अरे बाबा जितने केस बनेंगे वही आंसर हो जाएगा, बराबर ना? Yes, sir. Yes sir. 3 आइडेंटिकल बॉल्स को 3 जगह में रखना है, हर एक जगह में 1 आना चाहिए, हर एक जगह में 1 बॉल आनी चाहिए। एक ही तो तरीका होगा। यस बॉल्स भी आइडेंटिकल और बॉक्सेस भी आइडेंटिकल, तो एक ही तरीका होगा ना, तीनों बॉल्स को एक जगह में रख दो। लेकिन बच्चों अगर बॉक्सेस आइडेंटिकल नहीं हुए तो तरीके कितने हो जाएंगे? फैक्टोरियल 3 हो जाएंगे ना, Yes sir. यस बराबर ना? बॉक्सेस Yes. डिफरेंट हुए तो फैक्टर बॉल्स आइडेंटिकल है और बॉक्सेस डिफरेंट है, तो नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे? x1 + x2 + x3 इज इक्वल टू 3। Yes sir. इसके नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस निकालने हैं। लेकिन बच्चों इसमें अगर हर एक को 1 1 1 देना पड़े
तो नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे ना, 3 हो जाएंगे। फैक्टोरियल 3 नहीं होंगे ना, नहीं सर। क्योंकि बॉल्स तो आइडेंटिकल है ना। हाँ सर। यस सर। यस सर। 3 कैसे हुए चलो बताओ। देखो तुम कैसे फंसते जा रहे हो। ये देखो, ये बॉक्सेस बने, ये और ये बॉक्स 1 है, ये बॉक्स 2 है और ये बॉक्स 3 है, और ये तीनों बॉल्स आइडेंटिकल है। इन 3 आइडेंटिकल बॉल्स को इन बॉक्सेस में डालना है। अगर बॉक्सेस आइडेंटिकल हो तो एक ही तरीका है, अगर बॉक्सेस आइडेंटिकल नहीं हो तब 3 तरीके कौन से हैं बताओ चलो। तब भी एक ही तरीका होगा ना। बोलो बच्चों, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? अरे बाबा वो तीनों में एक एक बॉल्स डाल दो, दैट्स इट। अब बॉल्स को अरेंज करना ही नहीं है, ये तीनों बॉक्सेस में इस बॉल को इस बॉक्स में डालोगे, इस बॉल को इस बॉक्स में डालोगे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना। लेकिन बच्चों Yes, बॉल्स yes, भी sir. डिफरेंट होती तो फैक्टोरियल 3 वेज होते कि नहीं होते बताओ। हाँ सर, तो होता है। Yes. हाँ, और एटलीस्ट हाँ, 1 बॉल वाला अगर वो फंडा नहीं लगाता, एटलीस्ट 1 बॉल वाला वो फंडा अगर नहीं लगाता तो नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस चाहिए होते नहीं होते बच्चों। हाँ सर। हाँ सर, होता है। सब चीजें बच्चों एक बात तो और समझो, मैं एंड में बोलूंगा, अभी इस चीज को इधर रोक देते हैं। जो क्वेश्चन देने की मैं बात कर रहा था वो बच्चों होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ, ध्यान देना। पहले एक बार वेरीफाई कर दूं क्योंकि एग्जैक्ट क्वेश्चन चाहिए ना। हाँ, फाइनल आंसर वेरीफाई करना होता है ना। बच्चों एक आर्चर जो है ना, इधर खड़ा होके इस पे एरो लग, तो खेलते हो कि नहीं खेलते हो? कैसीनो गए हो कभी? नहीं, नहीं गए हो, नहीं गए, नहीं। आई एम सॉरी, आई आस्क्ड द रॉन्ग क्वेश्चन। राइट बच्चों, इसमें अगर एरोज हम लोग को मारने हो, राइट, तो तुम्हें पता है ना मेन सक्सेस क्या है? ये है ना, Bullseye सर, सेंट्रल। Yes, sir. बुलसआई। ये सब बच्चे जानते सब है, राइट। हाँ, तो बच्चों और डफर खिलाड़ी कौन हो गया बच्चों? ये हो गया ना, ये डफर हो गया ना, Yes, ये sir. हाँ सर। यस सर। है ना। अब बच्चों ये कहानी ये है कि एक आर्चर को यहाँ पे 0 स्कोर होता है, यहाँ पे 2 स्कोर होता है। देखो यहाँ 0 है लेकिन यहाँ 2 है, 1 नहीं, यहाँ 2 स्कोर होता है। अगर उसका एरो यहाँ जाता है तो 2 स्कोर होता है, यहाँ जाएगा तो 3 और यहाँ जाएगा तो 4 और यहाँ जाएगा तो बच्चों 5, ये स्कोर होता है। क्वेश्चन समझ में आ गया बच्चों तुम लोग को? हाँ सर। Yes, sir. ठीक है। अब बच्चों उसको 7 चांसेस मिले हैं, लेट मी कंफर्म। बच्चों मैंने आईआईटी के आरई का डायरेक्ट क्वेश्चन में नहीं देता हूं, समझ लो एक चीज, आरई का क्वेश्चन में थोड़ा मॉडिफिकेशन वगैरह करता हूं, उसका रीजन है बच्चों, मैं बाद में आरई का पूरा एक सेट, रूट की एंट्रेंस एग्जामिनेशन का पूरा एक सेट, मतलब पूरी मैथ्स का एक सेट, हर चैप्टर का अलग अलग, राइट, वो सब तुम लोग को प्रैक्टिस के लिए देता हूं। अगर ये क्वेश्चन यहाँ कर दिया तो फिर वहां करने का मतलब नहीं रहेगा ना, तो थोड़ा मॉडिफिकेशन ताकि नोट्स अच्छे से रिवाइज हो जाए, लेकिन मिलेगा ये क्वेश्चन वहां पे। ओके, तो जो इसमें उसने दिया है कितने चांसेस मिल रहे हैं हर एक आर्चर को? 7 चांसेस मिल रहे हैं, 7 चांसेस। हर एक बंदे को 7 चांसेस मिल रहे हैं। तो बच्चों एक बात बताओ, एक पर्टिकुलर प्लेयर को टोटल 30 कितनी तरह से बन सकता है? नंबर ऑफ वेज। बच्चों समझ में आया? जैसे 7 चांसेस मिले उसको और टोटल चाहिए 30, तो 30 आने का एक तरीका क्या रहा बच्चों? 6 चांसेस वो यहां मारे, 30 बन गया यस बच्चों, सर। हाँ और सर। 7वां चांस वो यहां मारे, हो गया ना 30। हाँ सर। यस तो बच्चों सर। 30 का तो बहुत सारे तरीके बन जाएंगे ना। हाँ सर। Yes, sir. यस सर। बहुत सारे कितने बन जाएंगे पता है बच्चों? बहुत सारे बन जाएंगे। तुम लोग को आइडिया भी नहीं है कितने बन जाएंगे। कोई अगर मान लो किसी कसिनो में कोई ये मतलब कैलकुलेशन करने बैठ जाए और वो पीएनसी से कैलकुलेशन करने बैठ जाए, जो मेथड हम कर रहे हैं,
राइट, करते उसी से है, लेकिन उनके यहाँ वो सॉफ्टवेयर फीड होता है तो खटाक से उठा के वहां से निकाल लेते हैं। कॉम्बिनेट्रिक्स का सॉफ्टवेयर कितना टाइम, हार्डली जो लोग बनाते हैं उनको पता है कितना टाइम, मैंने बनाया है एक्चुअली। तो जब मैं बोलता हूँ कि इसका आंसर निकालना सॉफ्टवेयर से इज वेरी इजी, बट द थिंग इज कैलकुलेट मैन्युअली करना इट्स वेरी डिफिकल्ट। और कंसेप्शनली करना, बच्चों तुम्हें समझ में आया कंसेप्शनली इसका कंसेप्ट किधर से स्टार्ट होगा? यही तो है इसका कंसेप्ट, x टू द पावर 0, x टू द पावर 2, 3, 4, 5, कितने ब्रैकेट्स बच्चों? 7. 7 7. ब्रैकेट्स। इन 7 ब्रैकेट्स के मल्टीप्लिकेशन में किस कौन चाहिए बच्चों तुम्हें? to the power 30. x की पावर कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 30, बराबर है बच्चों? So 30, अब 30 30 है ना? अरे यार तो 30. माफ कर दो भाई, माफ कर दो, 30 ठीक है बच्चों, यही चाहिए ना? हाँ सर। Yes, sir. अभी जो है तुम्हें लग रहा है क्या है, जीपी तो बन रही है, जीपी बन नहीं रही है एक्चुअली, समझ रहे हो तुम? नहीं बन रही ना बच्चों जीपी। Yes. ये जीपी बनती है ना तो ये क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाता था एक्चुअली। उसने यही खेल खेला है बच्चों के साथ में, कि उसने इसको जीपी नहीं बनाया, उसने इसको कुछ गंदा बना दिया एक्चुअली, राइट? और उस गंदे को सॉल्व करके 30 का कोफिशिएंट निकालना थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग, इरिटेटिंग है। आई एम नॉट सेइंग दिस इज अ चैलेंजिंग क्वेश्चन, दिस इज एन इरिटेटिंग क्वेश्चन। But I remember one question well, like, you know, I'm talking about 2000, year 2000, right? Where one question of one student, I would like to name that student in the end. One question, because, you know, आपको बच्चों 2000 का पता है, 2000 में सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते थे, Yes sir. Yes, है ना? और उसमें 2 एग्जाम होते थे, एक होता था स्क्रीनिंग और एक होता था मेन। उसको मेन बोलते थे बच्चों। स्क्रीनिंग से क्वालिफाई करते थे कि कितने बच्चे आईआईटी देंगे, और फिर मेन एग्जाम होता था बच्चों, ऐसा कुछ था तरीका उसका, राइट? उसके जो गैप होता था थोड़े बहुत दिन का, वो जो मेन का पेपर लेके आते थे स्टूडेंट लोग, इंस्टीट्यूट आ जाते थे, है ना? और कोटा एक सेंटर उस टाइम हुआ करता था, अब नहीं है बट पहले हुआ करता था। तो पेपर लेके आ गया एक बच्चा, अब मैं मैथ्स में मैं पेपर सॉल्व कर रहा हूँ, मेरे साथ में वीकेबी सर भी हैं, वीकेबी सर अभी नहीं रहे हैं, राइट? बट मेरे साथ में वीकेबी सर भी थे, और बस हम 2 ही टीचर थे उस टाइम इंस्टीट्यूट पे, और कोटा हम टॉकिंग अबाउट। और फिजिक्स में भी ऐसे ही आरकेवी सर थे और उनके साथ एक टीचर था, 6 टीचर्स हम लोग बैठ के और बच्चों के डाउट्स ले रहे थे उसमें। तो एक स्टूडेंट है, उसने क्या किया, उसने जेईई एडवांस का जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन था, उसने पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया बच्चों, और पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद उसके दिमाग में पता है क्या आया? इतना गंदा क्वेश्चन, इतना इरिटेटिंग क्वेश्चन आईआईटी नहीं पूछता, कुछ तो स्मार्टनेस उसमें होता है। आईआईटी कभी भी कोई क्वेश्चन ऐसा मतलब इररिलेवेंट कैलकुलेशन वाला नहीं पूछता है। पूरा सॉल्व कर दिया, इररिलेवेंट क्वेश्चन नहीं पूछ सकता, ये उसके दिमाग में आया, क्योंकि पूरे साल हम लोगों ने सिखाया ही एक ही चीज था, इररिलेवेंट क्वेश्चन, ऐसा गंदे क्वेश्चन नहीं पूछता, बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, एक्चुअली वैसा ही होता भी है, राइट? लेकिन अब ट्रेंड चेंज हो गया है बच्चों। उसने पता है क्या किया उस क्वेश्चन के साथ? ये क्वेश्चन, ये सॉल्यूशन, और ऐसे करके आ गया, ठीक है बच्चों? मार्क्स गए ना? इसके मार्क्स नहीं मिलेंगे ना? मिलेंगे सर। इसके मार्क्स गए ना उसके? पता है जब टीचर ने सॉल्व किया ना, तो टीचर सॉल्व करता गया, एंड में आंसर लिखते ही बच्चा, एंड आई वाज देयर, जैसे उसने बोला ना ये क्या हुआ, तब मैं गया उधर कि क्या चल रहा है। तो उसने बताया, सर मैंने ये क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व किया, आपने तो बोला था इतना गंदा कैलकुलेशन आता नहीं है। तो सर ने बोला कि यार अब आईआईटी सरप्राइज कभी कर देगा, तो तू ऐसे रॉन्ग मान ले कोई क्वेश्चन कर दिया तो क्रॉस तो मत कर गया कम से कम। नवनीत लोहीवाल बच्चों ऑल इंडिया रैंक 4 था वो बच्चा, समझ रहे हो? ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन खत्म करके आते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन इरिटेटिंग क्वेश्चन है, ये गंदा क्वेश्चन नहीं है, मतलब कंसेप्शनली गंदा क्वेश्चन नहीं, सबको पता है ये करना है, सब कर देंगे, देखना टाइम निकाल के। देखते हैं परसों आता है कि आता है। स्क्रीनशॉट किसी को कॉपी करना है तो कॉपी कर लो, अदरवाइज स्क्रीनशॉट डाल दो। कॉपी तो क्या करना है, ये क्वेश्चन है और ये भी क्वेश्चन ही है। अगर तुम बोलो तो बच्चों मैं थोड़ा बहुत सॉल्व कर दूंगा तुम्हारे लिए इसको। No, नहीं sir. सर। नहीं सर। ठीक है, स्क्रीनशॉट के लिए डन नहीं आया अभी तक मेरे को।
बच्चों थोड़ा जल्दी करो। तुम लोग इस क्वेश्चन को ट्राई कर रहे हो क्या अभी? नहीं सर, कॉपी कर रहा हूँ, क्वेश्चन कॉपी कर रहा हूँ सर। अच्छा ठीक है। सर उसने नहीं डाला, मैं डाल दूं? डाल दिया हाँ, उसने। हाँ वो ग्रुप पे आ गया ना, ग्रुप पे आ डाल गया। दिया। हाँ सर आ गया। हाँ आ गया ग्रुप पे आ गया, या आई हैव सीन आ गया है। डन सर। इरेज कर दूं क्या? Yes, sir. यस सर। जो ये छोटा सा पॉइंट थोड़ा ध्यान देना। हाँ ये तुम लोग कर चुके हो, सिर्फ ध्यान देना बच्चों। एक बात बताओ, A1 A2 अप टू AN, ये n डिफरेंट आर्टिकल्स है। नंबर ऑफ वेज ये किया हुआ है तुम्हारा, सेलेक्टिंग एटलीस्ट वन आर्टिकल और ऑब्जेक्ट लिख देते हैं ना बच्चों। बच्चों पता है ना, या तो 0 ऑब्जेक्ट या फिर 1 ऑब्जेक्ट या फिर 2 ऑब्जेक्ट्स या फिर सारे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर ले, ये हुआ ना? Yes, sir. ऐसे ही है ना बच्चों? या तो कोई भी ऑब्जेक्ट और -1 भी करना होगा। नंबर ऑफ वेज, अरे रुक ना, नंबर ऑफ वेज सेलेक्टिंग एटलीस्ट वन आर्टिकल, ये होगा ना बच्चों? इनमें बच्चों एक तरीका वो भी आ गया ना जिसमें सारे लोग सेलेक्ट हुए, मतलब सारे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हुए। तो इसको मैं -1 कर दूं। अब तुम सब लोग बोलोगे सर इसको -1 करने की जगह आप ये यही मत लिखते ना, बराबर है ना बच्चों? अरे एटलीस्ट 1 लेना था तो या 1 लेंगे या फिर 2 लेंगे या फिर 3 लेंगे या ये लेंगे, बराबर है ना बच्चों? हाँ Yes, सर। sir. तो ये क्यों किया है पता है ना, इसका आंसर पता है ना? तो तुम लोग ताकि को? सीरीज हाँ, बन sir, सके। पता है। हाँ सर। तो क्या है series इसका बनेगा। आंसर, क्या है? 2 power n। 2 raised to power n minus 1, ये है ना बच्चों? Yes, बच्चों sir. एक चीज बताओ, एक चीज बताओ, सब लोग ध्यान देना। हाँ एक चीज बताओ, A1 A2 अप टू AN, हर एक आर्टिकल के लिए कितनी चॉइस है बच्चों? मुझे ये आर्टिकल इस बॉक्स में डालने हैं, हर एक आर्टिकल के लिए इस बॉक्स में दो डालने की choice, कितनी 2 choice? choice। 2 चॉइसेस है, या तो इसको सेलेक्ट करूं या इसको सेलेक्ट नहीं करूं। सेलेक्टेड, नॉट सेलेक्टेड। बच्चों जब ये सेलेक्ट हुआ तब A2 के लिए फिर 2 चॉइस है, सेलेक्ट और नॉट सेलेक्ट। A2 के लिए 2 चॉइस है, यहां भी सेलेक्ट और नॉट सेलेक्ट। बच्चों टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए? 1 2 3 4 वेज हो गए ना A1 A2 के लिए। बच्चों से यस और नो? Yes, sir. Yes sir। A1 A2 के लिए 2 तरीके हो गए, 4 तरीके हो गए। तो बच्चों A1 A2 A3 AN के लिए टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए? 2 raised to power n हो गए ना? Yes, sir. इन 2 raised to power n वेज में एक तरीका वो भी है बच्चों जहां पे ये n आया, ये n आया, ये n आया, ये n आया, n n n वाले एक तरीका वो भी आएगा ना? हाँ कोई सर। भी सेलेक्ट नहीं होगा। Yes, sir. उसको क्या करेंगे? सेपरेट कर देंगे। इसी क्वेश्चन का आंसर ये तरह से भी सोचा जाना चाहिए बच्चों। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि मैं ऐसे आलतू फालतू कोई भी कंटेंट पढ़ाने के मूड में नहीं हूँ जो उससे तुम्हें लगे कि यार बुकलेट के कम क्वेश्चन बन रहे हैं। आई हैव नो इश्यूज बुकलेट में कम क्वेश्चन बने, क्योंकि बुकलेट के ज्यादातर क्वेश्चन तो अच्छे क्वेश्चन तो मैं क्लास में तुम नहीं पूछोगे तब भी डिस्कस करने ही वाला हूँ, राइट? उससे कुछ नई नई चीजें और सीखने को हो सकता है मिल जाए हम लोग को। लेकिन ये मैं नहीं चाहता कि आप थ्योरी देखो और कहो ये इस थ्योरी का क्वेश्चन है, ये इस थ्योरी का क्वेश्चन है, ये इस थ्योरी का क्वेश्चन है और क्वेश्चन बन गए। जनरली तो बच्चों यही होता है ना। अच्छा आपका डिसाइडिंग फैक्टर क्या रहता है कि एक टीचर अच्छा पढ़ाता है कि गंदा पढ़ाता है? उसका डिसाइडिंग फैक्टर यही तो होता है ना कि उसने जो पढ़ाया उससे बुकलेट बना कि नहीं बना। सही है सर? नो? यस सर। अगर उससे Yes, sir। बुकलेट बनता है, अगर उससे बुकलेट बन जाता है, राइट, तो मतलब उसने थ्योरी अच्छा कराया। और बुकलेट अगर नहीं बन रहा है तो थ्योरी अच्छा नहीं कराया। बच्चों ये इतना कॉमन रॉन्ग टेंडेंसी है। कंटेंट का अगर छोटा मोटा पार्ट तुम्हारा रह भी जाता है जो नहीं भी कराया जाता है, राइट, और उसको आप खुद सोचते हो कि इसको कैसे सोचा जाना चाहिए, जितना कराया उसी में से, राइट, दैट मेक्स यू परफेक्ट फॉर एग्जामिनेशंस। ये 2 raised to power n minus 1 ऐसे आता है, इज करेक्ट, लेकिन ये ऐसे भी आता है, ये तुम्हें लोगों को सोचना चाहिए।
कि यार इसको लाने का एक और तरीका, और वो ग्रुप पे आना चाहिए। तुम्हारा ग्रुप थोड़ा डल सा चलता है, मैंने देखा है, चलता आजकल शुरू हुआ है धीरे धीरे, राइट, लेकिन ग्रुप से ही आप परफॉर्म करते हो, ये बात मान के चलो। बच्चों अकेला एक टीचर 2 घंटे के लिए साथ में रहता है, इसमें 1.5 घंटे लेक्चर रहता है, राइट, और फिर वीक में 2 बार बस, बाकी बच्चे मिलके फोड़ देते हैं आईआईटी। तुम लोग ग्रुप में ऐसी चीजें डिस्कस किया करो। दिस वाज द वन कंटेंट व्हिच आई हैड लेफ्ट। अब बच्चों मेरा क्वेश्चन तुमसे जाएगा, और जवाब जो है ना किसी का गलत होना नहीं चाहिए, समझ लो एक चीज, ऐसे धमकी नहीं दे रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं मतलब बैच पे थोड़ा कॉन्फिडेंस है इसलिए बोल रहा है ऐसा। बच्चों थोड़ा ध्यान दो इस क्वेश्चन पे, मतलब क्वेश्चन लिखते ही आंसर चाहिए। ए पी टाइम्स बी क्यू टाइम्स सी आर टाइम्स, और बच्चों D1 D2 DS टाइम्स। नंबर ऑफ वेज selecting at least one. बच्चों don't you think the answer is P plus 1 Q plus 1 R plus 1 into, बच्चों into 2s minus 1. 2s 2 raised to power s, और बच्चों ये कितना आ जाएगा -1। आंसर आ गया कि नहीं आ गया बच्चों? यस ये किया है ना Yes. पहले, अब क्या है इसमें बार बार कितनी माथा पच्ची क्यों करना? हो गया ना हाँ बच्चों ये? सर। yes sir Yes, sir. ठीक है, अगर बच्चों वो बोलता हर एक में से कम एक आना चाहिए, तो आंसर क्या होता? P इंटू क्यू इंटू आर इंटू 2 raised to power s -1, ऐसे एटलीस्ट वन फ्रॉम ईच। तो बच्चों आंसर आता P इंटू क्यू इंटू आर इंटू 2 raised to power s -1। बोलो बच्चों। Yes. यस Okay, sir. समझा। समझे ना? हर एक Yes, में से वन sir. आना चाहिए। Yes. और बच्चों तुम्हें समझ में आ गया होगा ये कहानी अब रोटेट किस तरह से होगी। वो क्या करेगा, आइडेंटिकल और नॉन आइडेंटिकल सब मिक्स करके दे देगा, बराबर ना? Yes, यानी sir. एक फ्रूट बास्केट में 3 तरह के फ्रूट्स दे देगा, और साथ में कुछ कंकड़ पत्थर दे देगा जिनको भी तुम्हें चुनना है, समझ गए? मतलब जनरली फ्रूट बास्केट में फ्रूट्स जो है उनको आइडेंटिकल हम लोग लेते हैं, वैसे लिख के देता है एग्जाम्स में, हमेशा लिख के देता है बच्चों, उस टेंशन में मत पड़ना, राइट। इन जनरल अगर देखा जाए बच्चों, तो जितने भी ये फ्रूट्स एंड ऑल नेचुरल थिंग्स हैं उनको हम लोग आइडेंटिकल अज्यूम करके चलते हैं, बट दिस इज नॉट द फंडामेंटल पार्ट, इट इज गिवन डिफरेंट इन डिफरेंट बुक्स, राइट, सो यू डोंट बॉदर अबाउट दैट। हैव यू ऑल अंडरस्टूड बच्चों? हैव यू ऑल अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर पार्ट? Yes, sir. yes I sir don't think we need any question on this। क्या है वो तो घिसने वाला ही क्वेश्चंस तो होंगे ना बच्चों, बुकलेट में मिल जाएंगे, है ना? सो एक बार बच्चों इसको करो, फिर एक बहुत छोटा और बहुत एलिमेंट्री कंसेप्ट है सर्कुलर परम्यूटेशन, उसको भी पूरा कर देते हैं, खत्म। उसके बाद जो बाइजेक्शन, उसके बाद जो इंक्लूजन एक्सक्लूजन और ऑल है, वो बच्चों सेट थ्योरी है, मतलब सेट थ्योरी थोड़ी पढ़ाऊंगा मैं, सेट थ्योरी तुम लोग को दे दूंगा एक बार, राइट। एक कराया है ना अपन लोगों ने सेट थ्योरी, याद आ रहा है बच्चों तुम लोग को? सेट थ्योरी किया है ना अपन लोगों Yes, ने? sir. yes एंड ए यूनियन बी यूनियन सी वाला किया है ना? हाँ सर Yes, किया sir. है। वो question sir. हाँ, किसी ने पूछा भी था कि सर वो +2 टाइम्स इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कैसे डाल रहे हो, दिस एंड दैट, No, sir. है ना? चलो एक बार ये पिक्चर लेकर डाल दो। सर, हाँ बोलना। तो आपने जो राइट साइड में एग्जांपल लिया A1 A2 टू था A सो उसमें आपने बोला था n टाइम्स, सो आपने -1 क्यों किया? मतलब ये वाला वो- ये, नहीं, राइट लेफ्ट साइड सॉरी। हाँ यस सर। ये बेटा लिखा हुआ है एटलीस्ट 1 लेना है, तो ये तो 0 1 2 3 मतलब 0 लेना भी शामिल हो गया ना इसमें। तो एक वो तरीका Yes. जिसमें 0 लेना है वो अपने को सब्ट्रैक्ट करने पड़ेगा। बच्चे यहाँ पे हम लोग तरीके सब्ट्रैक्ट करते हैं,
नंबर सब्ट्रैक्ट नहीं करते हैं, नंबर ऑफ वेज सब्ट्रैक्ट करते हैं, नंबर ऑफ वेज इन विच नन इज टेकन टू बी सब्ट्रैक्टेड एक्चुअली. हैव यू अंडरस्टूड बच्चे? Yes. दैट वे. ऑलराइट गाइस, कोई भी ले लो ना. प्रेक्षक तू ले लेना फोटो उसको. अच्छा धैर्य तूने लिया बेटा? सर धैर्य कोटेचा बिफोर सर लास्ट उसने ईयर डाल दिया, उसने डाल दिया. धैर्य तेरे लिए, धैर्य तेरे घर में कुछ गाना वाना चल रहा है, बंद करवा देना उसको. पढ़ नहीं सकते ना इस तरह से, राइट? धैर्य तुझे पता है तेरे नाम का एक स्टूडेंट बिफोर लास्ट ईयर 2021 का रिजल्ट तो इस साल आया, 2020 में एक बचा था. तुम लोग उसके टच में आ जाओगे बाय द टाइम, बिकॉज ही इज अ वेरी पॉपुलर स्टूडेंट ऑफ आईआईटी बॉम्बे, राइट? धैर्य करके एक स्टूडेंट था, उसको बाय द टाइम एग्जामिनेशंस में थोड़ा डिप किया तो उसको आईआईटी बॉम्बे एरोस्पेस इंजीनियरिंग मिला, राइट? एंड आई वाज वेरी अपसेट अबाउट हिम एक्चुअली. मुझे भी बहुत गंदा लगा था कि उसको रैंक डिप कर गया. ओके, बट आई टोल्ड हिम यू जस्ट धैर्य चुनचुन वाला, राइट? देखो ये बच्चे बड़े स्मार्ट है एक्चुअली, ढूंढ ही लाते किधर से. हाँ, तो उसको एरोस्पेस इंजीनियरिंग मिला. सो आई डिडंट टेल हिम एक्चुअली, बट आई टोल्ड अदर स्टूडेंट्स जो ग्रुप में मतलब हम लोग के ग्रुप में जो बातचीत चल रही थी, तो सब लोग बड़े अपसेट थे उसको लेकर के. बोल रहे थे सर उसका इसके साथ ठीक नहीं हुआ एक्चुअली. मैंने कहा यार वो इतना टैलेंटेड है, वो वहां जाके और फोड़ देगा. तो सीजी फोड़ेगा तो उसको अच्छा आ ही जाएगा, राइट? मतलब किसी का सीजी मान लो 9.9 है या 10 पॉइंटर है. जैसे मीर वागले करके एक स्टूडेंट था वागड़ बैच का, राइट? उसको कुछ 81 रैंक था, 81 के 82 ऐसा कुछ रैंक था. तो उसको सीएस नहीं मिला, उसको क्या मिला? इलेक्ट्रिकल, राइट? बच्चों पता है इलेक्ट्रिकल में रह के तुम किसी से पूछना इलेक्ट्रिकल ब्रांच का किसी स्टूडेंट को 10 पॉइंट मिल सकता है क्या? 9.5 9.6 इज वेरी डिफिकल्ट. 10 pointer, he was 10 pointer in electrical branch, right? And he got this computer science branch change in first year. Okay, similarly Dharya, I am proud of him seriously. He was such a good student throughout the 2 years, number one. And number two, उसने वहां जाके जो कमाल किया ना, एरोस्पेस से डायरेक्ट कंप्यूटर साइंस में चला गया बच्चों. उसने इतना अच्छा सीजी मेंटेन किया. और वो जब अभी जूनियर्स के बीच में आया अभी इन दिनों में, तो उसने सब बच्चों को मतलब रिजल्ट आने के बाद तो सब स्टूडेंट्स को एक ही बात बोली थी कि ब्रांच चेंज करने के लिए आप दिमाग में ये रख के मत चले जाओ कि आपको ब्रांच चेंज करना है. आप सिर्फ वहां जाकर के दिल से पढ़ाई करो और जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है उसको मत छोड़ो. दैट इज मोर इम्पोर्टेंट एक्चुअली. जो उसने करके दिखाया, बहुत सारे बच्चों ने करके दिखाया, बहुत सारे बच्चों ने ब्रांच चेंज किया है. सो धैर्य, यू गेट रेडी, यू डोंट नीड टू डू दैट. तुझे फर्स्ट टाइम में कुछ अच्छा ब्रांच मिलना चाहिए, व्हाट यू एक्चुअली डिजर्व एंड यू विश. ठीक है, मुझे लगता है इतनी देर में लिखा होगा सब लोगों ने. हाँ सर. Yes, sir. सर चलो हाँ बोलो. सर वो जो आपने 30 फैक्टर जो निकालने का बोला था, उसका मेरे को एक शॉर्टकट मैं देख रहा था तो समझ आया था सर. वो बाद में एंड में करते हैं. इंक्लूजन एक्सक्लूजन कुछ देख रहा है क्या? कुछ मतलब एक्सक्लूड करके और देख रहा है क्या? सर मैंने उसके प्राइम फैक्टर्स निकाले और फिर देखा कि मुझे पता 5 था. -1 और 3 -1 ठीक एंड है, 2 माइनस. कर ले आंसर ग्रुप पे डालना. ठीक है, हाँ सर. सही है, सही तरीका है. लेकिन ट्रैप जो है ना वो मैं बता दूंगा क्या ट्रैप है. ठीक है, हाँ सर. इट्स बेटर लाइक यू नो जो बताया ना उससे सॉल्व करना. क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना बच्चों, ये सेम क्वेश्चन का मतलब इसमें वैल्यू चेंज कर करके. और मैं ये क्वेश्चन बच्चों तुम्हें पता ही आर का क्वेश्चन है, तो कब का क्वेश्चन है, बहुत पुराना क्वेश्चन हो गया ना. तो ये क्वेश्चन में 2004 जब से इंस्टीट्यूट मैंने ज्वाइन किया है, रिवीजन लेक्चर्स में बच्चों, रूटीन लेक्चर्स में मैं पीएनसी नहीं पढ़ाता हूँ. हाँ, रिवीजन लेक्चर में पीएनसी का लेता हूँ. तो रिवीजन लेक्चर में मैं हर बार ये क्वेश्चन लेता हूँ और सब बच्चे फंसते हैं. ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो मैंने दिया है तुम लोग को, ये तुम मान के चलो कि थोड़े प्राण पिएगा तुम लोग के. बट बाइनोमियल जिसका स्ट्रॉन्ग है वो जल्दी कर सकता है, उसको आइडिया आ जाएगा. बच्चों एक रिक्वेस्ट और है, जितने भी प्रॉब्लम्स इधर बोर्ड पे आते हैं या सीपीएस में आते हैं, वो तुम किसी भी टीचर से पूछो मत. किसी भी टीचर से नहीं, दोस्त लोग ही मिलके करो. और फिर तुम्हारा डाउट सेशन जिन सर का लगवाएंगे या मैं लूंगा, राइट, दोनों में से जब जो भी होगा उसमें उस टाइम अपने डाउट्स पूछ लो. सॉल्यूशंस तो आते ही है ना वैसे सारे के सारे, राइट? हाँ सर. ओके गाइस, सर्कुलर परम्यूटेशन.
ये बड़ा फालतू सा टॉपिक है एक्चुअली। इसमें क्वेश्चन अच्छे अच्छे बन जाते हैं, एक अच्छा क्वेश्चन कराएंगे उससे टाइम पता लग जाएगा हम लोग को। अदरवाइज ये बच्चों ये टॉपिक एकदम घटिया सा टॉपिक है। आप लोगों ने किया है क्या पहले थोड़ा बहुत, किसी ने भी? नहीं बच्चों सर। वो एक सर्कल नहीं, में sir. बैठने का एक क्वेश्चन था, एक मेथड था। अच्छा बच्चों ये देखो ध्यान से, ये स्ट्रिप देखो, ये स्ट्रिप देखो, ए बी सी डी। अब बच्चों मैं इसको डिस्प्लेस कर रहा हूं, और इसको डिस्प्लेस करूंगा ना बच्चों, तो ये स्लाइड होके डी इधर आ जाएगा, डी ए बी सी। बच्चों ओरिएंटेशन चेंज नहीं हो रहा है ना, सिर्फ स्लाइड कर रहा हूं तो डी इधर आ गया, फिर ए बी सी। अब बताओ बच्चों नेक्स्ट वाली स्ट्रिप पे क्या क्या लिखना पड़ेगा मेरे को? CDAB। CDAB। जो स्टूडेंट मेरे साथ मिलके खुद एच का फॉर्मूला जनरेट कर देंगे ना, उनको इसमें तकलीफ आने वाला चांस नहीं है। बच्चों एक ही और बनेगा ना, बताओ हाँ सर। यस क्या सर। बनेगा बताओ? BCD सर BM। बी सी DA। डी ए। बच्चों अगर अब स्लाइड करूंगा तो ये रिपीटेशन हो जाएगा ना? हाँ सर। यस Yes. तो बच्चों स्लाइड करके एबीसीडी के कितने परमुटेशंस बनते हैं? 4 बनते हैं ना? 4। हाँ. 4 अरेंजमेंट sir. बनते हैं। से यस और नो? हाँ सर। Yes, अगर मैं sir. स्लाइड करूं तो एबीसीडी के लीनियर परमुटेशंस, लीनियर नहीं बोल सकते बच्चों, ओपन परमुटेशंस बोल सकते हैं। मान लो एक बंदे को हिंदुस्तान में, एक बंदे को पाकिस्तान में, एक बंदे को कुछ इंग्लैंड में, और एक बंदे को किसी 4th कंट्री में रख दें, ऐसे कुछ। लीनियर का मतलब ऐसा खुला होता है, खुला, ओपन, इट्स नॉट क्लोज। सर्कल तो क्लोज हो गया ना बच्चों? हाँ सर। हाँ, तो इस तरह से देखो इस चीज को। तो बच्चों एक चीज बताओ, अगर इसी चीज को मैं सर्कल में, जो यहाँ कर रहा हूँ वही सर्कल में कर रहा हूँ मैं, ये ए हो गया, ए को यहाँ नहीं लिखते, ऊपर लिखते हैं, ए बी सी डी। स्लाइड किया बच्चों, ए बी सी डी। बच्चों एक राउंड टेबल नहीं है जिसपे 4 लोग बैठ के खाना खा रहे हैं, राइट? क्या आप कोई रेस्टोरेंट में पहुंचे और रेस्टोरेंट में बैठ के देख रहे हो एबीसीडी 4 शक्ल वाले लोग हैं, वो इस टेबल पे बैठे हैं, या इस टेबल पे बैठे हैं, या इस टेबल पे बैठे हैं, या इस टेबल पे बैठे हैं। ऐसा ऐसा मत देखो बच्चों, राइट? आप देखो सर्कल में 4 लोग अरेंज हो रहे हैं। बच्चों एक बात बताओ, सर्कल को अगर मैं ऐसे थोड़ा रोटेट करूं, राइट, इस सर्कल के बाद इस सर्कल को ऐसे थोड़ा रोटेट करूं, तो बच्चों ये दो जो अरेंजमेंट्स आए हैं सेम आए कि नहीं आए? Yes, sir. हाँ सर. बच्चों चारों अरेंजमेंट डिफरेंट नजर आ रहे हैं क्या? सर आपकी आवाज नहीं आई थी. मैं बोल रहा हूँ चारों अरेंजमेंट्स डिफरेंट नजर आ रहे हैं क्या सर्कल में? No, sir. नहीं sir. नो सर। चारों सेम ही है ना? चारों Yes. सेम ही हाँ, तो है। sir. घुमा दोगे तो मान लो, ऐसा मानो सर्कुलर टेबल ही मानो, चलो ठीक है सर्कुलर टेबल, लेकिन ऐसे सर्कल होने वाली सर्कुलर टेबल का मतलब वही होता है ना यार, कुछ अलग अलग मतलब थोड़ी निकाल सकते हैं। बच्चों ध्यान दो, 4 लोग बैठे हुए हैं, तुम लोग रेस्टोरेंट में घुसे, चारों लोग को तुमने इस तरह से बैठे हुए देखा, ठीक है? फिर तुम बाहर आ गए, चारों तुम्हारे दोस्त हैं, राइट? चारों ने क्या किया, अपना टेबल जो ना यूं कर दिया, ये, राइट? तो तुम आके हंसोगे कि नहीं हंसोगे? बेवकूफ बना रहे हो, वहीं तो बैठे हुए हो, राइट? बराबर है ना बच्चों? हाँ सर। हाँ सर. टेबल घुमा के बेवकूफ बना रहे हो, बैठे तो सेम ही जगह पे हो ना? हाँ अरे सर। सेम जगह पे बैठा हुआ दिखेगा ना, ये जहाँ बैठा हुआ है ये वहीं पे बैठा हुआ दिखेगा ना बच्चों? हाँ सर, उधर ही दिखेगा। तो एक बात बताओ बच्चों कि लीनियर परम्यूटेशन जब 4 बनते हैं, 4 डिफरेंट थिंग्स के बारे में बात कर रहे हैं बच्चों, 4 डिफरेंट थिंग्स। लीनियर परम्यूटेशन जब 4 बनते हैं तो सर्कुलर परम्यूटेशन कितने बनते हैं बच्चों? 4। एक ही बनता है ना गधेड़ा, सॉरी सॉरी सर, सॉरी। कुछ भी बोल रहा है। लीनियर जब 4 बनेंगे तो सर्कुलर एक ही बनेगा बच्चों। लीनियर 1 बनेगा तो सर्कुलर कितना बनेगा? यूनिटरी मेथड। और बच्चों लीनियर एक्चुअली बनते कितने हैं? 4 डिफरेंट थिंग्स से लीनियर बनते कितने हैं? फैक्टोरियल 4 बनते हैं, सही या सुनो बच्चों? यस सर। Yes, sir. Yes. तो बच्चों सर्कुलर कितने बन जाएंगे बता सकते हो क्या? फैक्टोरियल 4/4 बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे? Factorial. 3 factorial. बराबर है ना बच्चों? 3 फैक्टोरियल।
बच्चों ये समझ में आया नहीं आया कहानी? हाँ बहुत सर। ज्यादा समझा। बहुत ज्यादा एलिमेंट्री है एक्चुअली। इसमें सिर्फ फॉर्मूला भी याद कर लो ना बच्चों, तब भी दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद सिर्फ वो जो ओरिजिनल परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ते थे ना, वही लगाना पड़ता है। सिर्फ शुरू शुरू के एक आध दो चीजें समझ में आनी चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज का डिफरेंस, दिस एंड दैट, समथिंग लाइक दैट। ओके बच्चों ध्यान दो, नंबर ऑफ सर्कुलर permutation of and different things कितने होंगे बच्चों? n-1 factorial. n-1 right. Point number 1. Point number 2, number of, ये बच्चों ये सेम, of r different things from and different things। बच्चों आंसर बता सकते हो उसका? पहले क्या करोगे, n में से r चूज कर लोगे? यस सर। Yes. अरे भाई n लोग खड़े हुए, r कोई टेबल की जगह है बस, तो n में से r चूज कर लोगे। n में से r चूज करने के बेस पे NCR हो गए। अब बच्चों कितने लोगों को सर्कल पे अरेंज करना है बताओ? सर आर लोगों को, R. r लोगों को। और R उसके number minus of one ways कितने हो गए factorial. बच्चों? r minus R one। minus R minus 1. R minus 1. r minus one। फैक्टोरियल। सही है क्या बच्चों? कुछ ऐसे Yes, sir. दमदार चीज है क्या? नहीं है ना? नहीं सर। कुछ दम नहीं है ना बच्चों? समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा अब एक चीज को ध्यान दो बच्चों, सब लोग ध्यान देना, ये दो सर्कल्स देखो ध्यान से। ठीक है, थोड़ा डिस्टेंस का ध्यान नहीं दिया बच्चों मैंने यहाँ पे। अच्छा तुम्हें ये दो जो डायग्राम्स बने हैं, इन दो डायग्राम्स में ऐसा नजर नहीं आ रहा कि हर एक बंदे का नेबर जो है ना, दोनों डायग्राम्स में सेम Yes, sir. है ना? कोई भी बंदा ले Yes, लो, sir. उसके आजू बाजू वाले नेबर सेम है बच्चों। बस लेफ्ट Yes, और sir. राइट का डिफरेंस। लेफ्ट और राइट का डिफरेंस। पता है ये बैच इतना मस्त बैच है ना, मतलब मैं तो कई दफा मैं सोचता हूँ कि बड़े लंबे टाइम बाद एक बढ़िया बैच पकड़ा। हाँ 3 ईयर भी बढ़िया है और वो भी बढ़िया है, तुम्हारा फ्लैगशिप भी। जेनेट 2 थोड़ा स्ट्रगलिंग मोड पे है बट कर लेगा बाय द टाइम, आजकल थोड़ा जोश में पड़ रहे हैं, लेट्स सी कितने दिन तक, बट वो भी कर लेगा। बच्चों इसमें लेफ्ट कॉम्बिनेशन और राइट कॉम्बिनेशन सेम है ना, मतलब एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज में कुछ डिफरेंस नहीं है ना? Yes, sir. नहीं सर। तो बच्चों एक बात बताओ, जो फैक्टोरियल r-1 कितने लोग हैं सर? a से g तक, a से h तक कितने नंबर बन गए बच्चों? 8. 8 बने ना? तो फैक्टोरियल 7 वेज इनको सर्कल में अरेंज करने के होंगे, ये बात तो पक्की है। लेकिन Yes, बच्चों sir. अगर मैं बोल दूं कि एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज में डिफरेंस हम लोग को नहीं लेना है, बच्चों ध्यान देना क्वेश्चन पे, कि 8 ऑब्जेक्ट्स को एक सर्कल में अरेंज करने के नंबर ऑफ वेज जो होंगे वो कितने होंगे बच्चों? फैक्टोरियल 7 होंगे। लेकिन अगर मैं बोलूं कि एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज अरेंजमेंट जो लिए ना उनको सेम मानना है, तो बताओ एग्जैक्ट हाफ हो जाएंगे ना वेज? By Yes, 2 factor. हाँ Yes, सर करेक्ट। बराबर ना? तो अगर मैं यहां लिखूं तो इफ डिफरेंस इन क्लॉकवाइज एंड, बच्चों ये सारी थियरी तुम्हें उसमें पीडीएफ में लिखी मिलेगी, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज नॉट टेकन, नॉट टेकन। अब बच्चों इस चीज को मैं जनरलाइज कर देता हूं, अरेंजिंग
n different things. बच्चों आंसर बोलो. फैक्टोरियल n minus 1 divided by 2. बच्चों आप हो जाएगा ना, से ये सुन रहा हूँ. हाँ सर. नेबर सेम मतलब एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज में डिफरेंस नहीं है. और बच्चों r आउट ऑफ n अगर करने हो तो और NCR into R minus 1 factorial. NCR into factorial r minus 1 Minus divided by 1 कितना upon बच्चों? 2. Yes sir. इतना इजी चैप्टर तो मैंने देखा ही नहीं एक्चुअली. मतलब ये वाला पार्ट स्पेशली सर्कुलर परम्यूटेशन वाला पार्ट. और जो इसमें क्वेश्चन गंदे आते हैं वो एक अलग चीज है. मतलब क्वेश्चन गंदे आते हैं तो सर्कुलर परम्यूटेशन के गंदे क्वेश्चन नहीं है. वो गंदे क्वेश्चन है तुम्हारे मतलब लीनियर परम्यूटेशन वाले ही सर्कुलर में ऐड करके उसने गंदा बना के दे दिया है. समथिंग लाइक दैट. बच्चों इसके ऑर्डिनरी एग्जांपल्स तुम लोग को पीडीएफ से मैं दूं तो तुम करोगे क्या? यस Yes, सर sir. कर लेंगे। नहीं आएंगे तो अपन डाउट्स में लेते हैं ना. डाउट तो छोड़ते ही नहीं है ना. अरे डाउट तो तुम लोगों ने लास्ट टाइम भी पीडीएफ में पूछा है तो बोला है ना. और बच्चों एक 45 पेजेस का पूरा पीडीएफ है एक्चुअली. जो भी क्लास में पढ़ा दिया गया उसका पूरा पीडीएफ 45 पेजेस का है. वो मैं अनाउंस करूंगा थोड़ी देर बाद, 5 मिनट बाद. बच्चों एक क्वेश्चन मुझे इसमें करना है अच्छा वाला, बस दैट्स इट. उसके बाद में पूरा 45 पेजेस का पीडीएफ विल बी होमवर्क. दिस इज द ओनली होमवर्क लाइक फर्स्ट टाइम आई एम गिविंग विच इज लिटिल बिगर. ओके, जहां बच्चों तुम्हें डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ में लड़ाई भी लड़नी है. और मुझे लगता है आधा घंटे से 1 घंटे का डाउट सेशन भी चाहिएगा जो अपन नेक्स्ट वीक में रखवा लेंगे सिर्फ उस पीडीएफ के लिए. और बच्चों आएंगे डाउट्स. मतलब तुम मान के चलो पूरे पीडीएफ में अगर 50 एग्जांपल्स हैं तो 7 से 8 एग्जांपल्स में तुम लोग को थोड़ी नीटी-ग्रिटीज आएंगी कि सर आपने जो थियरी पढ़ाई है वो इधर कहाँ मैच कर रही है. तो बच्चों सिखाने के लिए जरूरी है. सीखोगे तभी है. सारी चीजें मैं ही करा दूंगा तो तुम मेहनत ही नहीं करने लग पड़ोगे. एक बार ये जरा ले लो तो मुझे जो एक क्वेश्चन करना है सर्कुलर परम्यूटेशन का वो जरा फटाफट से अपन लोग निपटा दें. करो बच्चों. सर हाँ, सर जो बोलो ना. लेफ्ट साइड में लीनियर में ना, सो उसमें सेकंड में आपने लिखा है 1/4, सर वो नहीं समझा. अच्छा एक बार यूनिटरी मेथड पता है ना यार बच्चे. 4 किलो चावल अगर 1 रुपया का आता है तो 1 किलो चावल कितने रुपए का आएगा बेटा? समथिंग लाइक हाँ दैट. सर लीनियर समझ में 4 बनते हैं तो सर्कुलर में 1 बनता है. लीनियर में 1 बनेगा तो सर्कुलर में 1/4 बनेगा ना. लेकिन लीनियर में एक्चुअली बनते कितने हैं? फैक्टोरियल 4 बनते हैं ना. ये सिखाने के लिए, अदरवाइज ये तरीका करेक्ट नहीं है मेरे हिसाब से. सिखाने के लिए ऐसा मैंने करके दिखाया. ठीक है, आया क्या समझ में? यस सर. हाँ बोलना. सर थोड़ा उस साइड जाओगे स्क्रीनशॉट लेकर. Sir, हाँ बोलना. sir ये number of circular permutation of n different things n minus 1 factorial क्यों है? अरे यार यही तो सिखाया था बेटा. हाँ सर ठीक. अच्छा ओके. हाँ सर. हाँ सर. तो इसको 4 को n लिख. n को डिस्प्लेस करेगी तो n वो बनेंगे ना लीनियर. लेकिन सर्कुलर एक ही बनेगा ना बेटा. हाँ सर आ गया सर. सॉरी. 1 का 1/n और फैक्टोरियल n का फिर फैक्टोरियल n/n हो जाएगा. बराबर है ना. हाँ फिर सर. भी बच्चों जो मैंने सिखाया ना उससे अलग तरीके का प्रूफ तुम्हें पीडीएफ में मिल जाएगा. वहां से भी समझने का कोशिश करना. ठीक है दरिया. यस सर. हो गया फोटो. सर वो आदित्य कर रहा है उसमें डाल दो. अच्छा ठीक है, कॉपी करना है कर लो 2 मिनट ले लो. अच्छा इस क्वेश्चन पे मेहनत करके देना अच्छी सी. हाँ ये भी आरई का क्वेश्चन है और वेटेज पता है कितना है? 10 मार्क्स का वेटेज है. 15 क्वेश्चन आते थे. 15 से 20 के बीच में क्वेश्चन आते थे बच्चों. 3 घंटे में सॉल्व करने होते थे. हाँ 3 hours 15 to 16 क्वेश्चन इन अ पेपर. तो तुम समझ रहे हो ओलंपियाड जैसे हो गया ना. 5 क्वेश्चन आए और टाइम का पता ही नहीं है कितना टाइम लग रहा है. कि क्वेश्चन में आधा घंटा लग रहा है. लाइक दैट. ऐसे क्वेश्चन जब आते हो तो उनपे तो मेहनत लगेगी ना बच्चों. जब इरेज करना हो तो बता देना एक बार. डन सर. हो गया सर. ओके 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 ओके.
हाँ चलो, एक सर्कल है, सब लोग ध्यान देना क्वेश्चन में। हाँ, ये थोड़ा चैलेंजिंग सा क्वेश्चन है, मतलब इरिटेटिंग नहीं, चैलेंजिंग है बच्चों। 6th floor of one type and 3 different floors, मतलब F1 F2 F3 ऐसे ले सकते हो बच्चों इसको, है ना। रुको एक मिनट, नहीं बच्चों, 3 different flowers, मतलब ये 6 से अलग है बच्चों। मान लो ये येलो वाले फ्लावर्स है और ये रेड वाले है ना, ऐसे। अभी तुम्हें बच्चों इससे डिफरेंट गार्लैंड्स बनाने हैं, समझ गया ना, नंबर ऑफ डिफरेंट गार्लैंड्स। इज, अच्छा इसको मैंने इंटीजर टाइप बना दिया तुम्हारे लिए, an² + bn + c। फाइंड a² + b² + c²। सर आप क्वेश्चन का मीनिंग एक बार वापस बता सकते हो? बताता हूँ तुझे, बताता हूँ। देख, ये सर्कल तो बना हुआ गया, सॉल्यूशन में एक छोटा सा मीनिंग सिखा देता हूँ उसका क्या है। जैसे एक f यहाँ पे, एक f यहाँ पे, ये रेड है ना, जो f लिखा हुआ वो रेड है, ये यहाँ पे, बराबर। अब तेरे पास और कितने 6 फ्लावर्स है ना, x1 फ्लावर यहाँ डाल दे, x2 फ्लावर यहाँ डाल दे और x3 फ्लावर यहाँ डाल दे, ठीक है। तो बताइए ये गार्लैंड दिखेगा कि नहीं दिखेगा? अच्छा वाला गार्लैंड दिखेगा ना, सही है सर? नो, Yes, sir. यस सर, लेकिन डिवाइड बाय 2। सुनना सुनना सुनना, अभी कुछ किया नहीं, इतना इजी क्वेश्चन नहीं है, कम ऑन, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, थोड़ा तो इज्जत करो। हाँ, x1 फ्लावर्स यहाँ पे, x2 यहाँ पे और x3 यहाँ पे है, इन तीनों का टोटल कितना है बता? 6 है। 6 है ना। अच्छा एक चीज बता, आप छोटे छोटे बनाएंगे। हाँ, मान ले तीनों f एक साथ आ गए, तो x1 x2 x3 ये आ गया ना, क्या बोल रहा है? एक ये भी तो बनेगा, x1 0 x2 0 और x3 0, तीनों रेड कलर फ्लावर एक जगह दिख रहे हैं। अरे भाई सब सारे, बहुत सारे शॉपकीपर्स हैं, उनको जाके 6 और 3 फ्लावर्स दे दे और बोलो कि सब लोग जो है बाजू बाजू में बैठे हो, सब लोग, किसी का भी जो गार्लैंड है वो सेम नहीं दिखना चाहिए, अलग दिखना चाहिए, राइट। बताओ कितने डिफरेंट गार्लैंड्स बना लोगे? ऐसा ही तो क्वेश्चन है बच्चों। यस सर। अब मानो कि ये 2 रेड कलर फ्लावर्स के बीच में एक ही फ्लावर दिखे, यहाँ पे एक ही येलो कलर फ्लावर दिखे बच्चों, एक ही येलो कलर फ्लावर दिखे, वो एक गार्लैंड बना। 2 दिखे तो वो अलग बना, 3 दिखे तो वो अलग बना, सही है सर बच्चों? लेकिन बच्चों Yes, ये sir. बताओ, 3 फ्लावर यहाँ दिखे और 3 फ्लावर यहाँ दिखे और बाकी बचे हुए फ्लावर यहाँ दिखे, ये वाला केस, और 3 फ्लावर यहाँ और 3 फ्लावर यहाँ और बाकी बचे हुए फ्लावर यहाँ दिखे, ये वाला केस। ये 2 अलग अलग केस है कि सेम केस है? सेम केस सेम केस है ना। समझ में आ गया ना कहानी में क्या पूछने की कोशिश कर रहा हूँ? सर तो Yes, इसमें तो बहुत सारे जाएंगे। हाँ, अब तुम्हें ये पकड़ में आ गया कि इस क्वेश्चन में बीमारियां कहाँ है बच्चों। तीनों जगह डिफरेंट हुए, x1 x2 x3 तीनों जगह डिफरेंट हुए, तब फ्लावर्स अलग बनेंगे। 2 जगह सेम हुए तब नंबर ऑफ फ्लावर्स अलग बनेंगे। और बच्चों तीनों जगह सेम 2n वाला तो एक ही फ्लावर बनेगा, सही है सुनो? यस सर। अरे बच्चों ये रेड है, राइट। ये रेड 1 रेड 2 रेड 3 नहीं है कि फैक्टोरियल 3 वेज से इनको भी अरेंज कर दो। मैंने बहुत सोच समझ के यहाँ एफ किया था एक्चुअली, राइट। इसका मतलब यहाँ तीनों का सेम नंबर होगा तो एक ही फ्लावर बनेगा, दैट्स इट, सॉरी एक ही गार्लैंड बनेगा। बच्चों समझ में आया नहीं आया ये कहानी क्या है? sir. हाँ सर। अब तुम्हें ये चीज समझ में आ रही है कि तुम्हें इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालने हैं, वो तो करेक्ट है कि यहाँ पे कितने फ्लावर, यहाँ पे कितने फ्लावर, यहाँ पे कितने फ्लावर। बच्चों ऐसा नहीं है कि यहाँ बेगर्स बैठे हैं इन दोनों फ्लावर्स के बीच में, यहाँ और यहाँ बेगर्स बैठे हुए हैं, राइट। और बेगर्स
डिमांड कर रहे हैं कि हमें फ्लावर चाहिए। अच्छा, इनको टोटल कितना मिलना चाहिए? 6n मिलना चाहिए, से यस और नो? यस सर। यस सर। तो Yes, इससे sir. नंबर ऑफ पेज निकल जाएंगे ना तुम्हारे पास, हाँ सर निकल जाएगा। राइट? तो कोशिश करोगे इस पे? हाँ सर करता है। 5 मिनट कोशिश करके देख लो, अगर किसी का निकलता है तो। बच्चों चैलेंजिंग क्वेश्चन है, आई एम नॉट सेइंग ये इरिटेटिंग क्वेश्चन है, ये चैलेंजिंग क्वेश्चन है। ट्राई। नहीं 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 नहीं, इतना गंदा आंसर नहीं, इतनी जल्दी तो आ ही नहीं सकता। खैर, प्रथम को आया। नहीं, ये आंसर भी गलत।
ट्राई करोगे कि करके दूं, क्या बोलते हो? 5 मिनट और दोगे आप? अच्छा, इसका आंसर जो ना अगर मैं बता भी दूं, अच्छा मैं श्योर नहीं हूं, लेकिन मुझे लगता है इसका आंसर, क्योंकि एबीसी तो पता होना चाहिए ना आंसर के लिए, एबीसी भी पता होना चाहिए ना। रुको एक मिनट, 19 आंसर मुझे लग रहा है बच्चों इसका। इसका आंसर मुझे 19 लग रहा है बच्चों, 19। ट्राई करना एक बार, आई एम नॉट श्योर, वो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टाइम।